حدیث 2782 2782 صفحہ اس کا 44 اور اس کے فٹ نوٹس میں جہاد کے بارے میں معلوماتی چیز ہے. یہ معلومات ہی سب کچھ ہے. کیا ہے؟ انگلش میں ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ میں. الجہاد یعنی جہاد، بریکٹ میں ہے ہولی فائٹنگ، بڑی مقدس لڑائی، ان Allah's cause، اللہ کی راہ میں، اللہ کی وجہ سے، with full force of numbers، جس میں بہت زیادہ مسلمان ہوں، and weaponry، اور ہتھیار ہوں، لڑنے والے ہتھیار، گولہ بارود، تلوار، بم شم، سب کچھ. is given the utmost importance in اسلام. یہ ٹیررسٹ کا ذکر نہیں ہے، اچھے مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، برے مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے. ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، اسلام. اس ایک ہی لفظ میں ٹیررسٹ بھی آتا ہے، اچھا مسلمان بھی آتا ہے، برا مسلمان بھی آتا ہے، درمیانہ مسلمان بھی آتا ہے. اسلام and is one of its pillars، اور جہاد جو یہ ہے کہ اس کا ایک ستون ہے، on which it stands، جس کے اوپر یہ کھڑا ہے. by جہاد اسلام is established، یہ جہاد ہی کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ قائم ہوا ہے. جہاد نہ ہو اسلام کچھ نہیں ہے. Allah's word is made superior، اللہ کا جو کلام ہے وہ اس کو بہت بڑھ چڑھ کے بتایا گیا ہے. his word being، اس کے کلام، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی اور خدا نہیں. which means none has the right to be worshipped، کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، بٹ اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. and his religion، اور اس کے مذہب کی. بریکٹ میں اسلام is propagated، یہ ہے اسلام. اسلام ناٹ دہشت گرد نہیں، برا مسلمان نہیں، کوئی اور گروپ نہیں مسلمانوں میں، صرف ایک لفظ اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آپ نے سیمسن کی گفتگو سنی کہ وہ کس انداز میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے. جہاد کا یعنی کہ جہاد کے چیپٹر میں وہ حدیث مبارکہ تو نہیں پڑھ رہا، تشریح پڑھ رہا ہے. تو جہاد کو یہ جو کفار ہیں یا اپنا چوڑے ہیں، عیسائی ہیں، یہ کیا دہشت گردی کے روپ میں ہی دیکھتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ دہشت گردی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے. اب ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے یا یہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صدر امریکہ وغیرہ، یہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتا ہے، وہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ جہاد قطعی نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ جہاد قطعی نہیں ہے کہ ہر وقت تلوار ہاتھ میں لیے پھرو یا ویپن ہاتھ میں لیے پھرو اور جو آپ کا مخالف نظر آئے، جو آپ کے نظریات کا مخالف نظر آئے، اس کو اڑا دو. ایسا قطعی نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا، اگر دین اسلام میں یا مسلمان ایسے ہی ہوتے یا مسلمانوں پر جہاد اسی انداز میں فرض ہوتا جو یہ بدبخت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا جو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی بھی میں حدیث مبارکہ جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو کبھی بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد صحیح مسلم حدیث مبارکہ ہے 4427 یعنی کہ 4427 صحیح مسلم. یہ میں نے لی ہے شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی والی سے. حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمر بن عبید اللہ مقام حوریہ میں گئے تو انہوں نے عمر کو خط لکھ کر یہ حدیث بیان کی کہ جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں کھڑے ہو کر فرمایا، آئے لوگوں، دشمن سے مقابلہ کی تمنا مت کرو اور اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرو، اور جب تمہارا دشمن سے
मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और याद रखो जन्नत तलवारों के साए में है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ किताब के नाज़िल फरमाने वाले, ऐ बादलों को चलाने वाले, ऐ लश्करों को शिकस्त देने वाले, इनको शिकस्त दे और हमको इन पर गालिब कर दे। तो साबित हो गया कि मुसलमान जो है वो हर वक्त कताल के चक्कर ही में नहीं रहते कि गैर मुसलमानों को कत्ल कर दो, फलान ना कर दो, ऐसा मामला नहीं है। बहुत कुछ इस मौजू में मैं कहना चाह रहा हूं जिहाद में, मगर मैंने इस बयान को सिर्फ चंद मखसूस चीजों तक महदूद रखूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन हालतों में जिहाद फर्ज ऐन होता है और किन हालतों में फर्ज किफाया। फर्ज ऐन वो है कि अगर वो काम ना किया जाए तो मुसलमान गुनाहगार होता है, और फर्ज किफाया वो है कि अगर मुसलमानों की जमात में से कुछ अफराद वो काम कर लें तो तमाम मुसलमानों की तरफ से वो अदा हो जाएगा। तो फुकाह हनाफ, फुकाह मालिकिया, फुकाह शाफिया और फुकाह हम्बलिया के नजदीक जिहाद जिन सूरतों में कुफार से जिहाद करना फर्ज ऐन है वो हस्बे झेल है। ये मैं पढ़ रहा हूँ शरह सही मुस्लिम जिल्द 5 सफ़ा 255 अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब वाली। तो ये किताबें मैं कुरान पाक में से और हदीस मुबारका में से भी हवाला जात दे सकता था, मगर मैं सिर्फ इसलिए कि ताकि ये किताबें आपके सामने आ जाएं, इंटरनेट पर अवेल हैं। आप इन मामलात को, आप चाहे मुसलमान हैं चाहे आप गैर मुस्लिम हैं, आप अगर वाकई ही समझना चाहते हैं तो ये किताबें आपके लिए बहुत आसान कर देंगी आपको समझाने में या समझने में जिहाद के चैप्टर को भी। नंबर 1, जब जहाज के लिए रवाना होने का आम हुक्म दिया जाए, यानी जब किसी मुसलमान मुल्क का अमीर मुल्क के हर शहरी को जहाज के लिए रवाना होने का हुक्म दे, खा वो शहरी फौजी हो या गैर फौजी, उस वक्त उस मुल्क के हर मुसलमान पर जिहाद करना फर्ज ऐन है। इस तरह अगर किसी शहर का मुसलमान अमीर हुक्म दे कि तमाम शहर के लोग जिहाद के लिए रवाना हों, तो इस शहर के हर मुसलमान पर जिहाद के लिए रवाना होना फर्ज ऐन है। अलबत्ता जो लोग जिहाद करने से माजूर हों वो इस हुक्म से मुस्तस्ना है। जिस इलाका के लोग दुश्मन इस्लाम से करीब हों, इससे जिहाद करने पर कादर हों, इन पर इससे जिहाद करना फर्ज ऐन है। नंबर 3, मुसलमानों के लिए कि जिस शहर की सरहदों पर कुफार हमला करने के कसद से जमा हो जाए, इस शहर के मुसलमानों पर इन कुफार से जिहाद करना फर्ज ऐन है। और अगर इनको अपने दिफा में दूसरे शहर के मुसलमानों की जरूरत हो तो फिर इन पर भी जिहाद फर्ज ऐन है। जब अयाजुल बिल्लाह यानी कि अल्लाह पाक माफ फरमाए, काफिर किसी मुसलमानों के किसी शहर को रोंद रहे हों तो इस शहर के मुसलमानों पर जिहाद करना फर्ज आइन है, और जब उन्हें दूसरे मुसलमानों की मदद की जरूरत हो तो इन पर भी जिहाद फर्ज ऐन है। और मजीद हम इसी चैप्टर को देखते हैं। इन सूरतों के अलावा आम हालात में जब काफिर अपने अपने मुल्कों में हों तो जो मुसलमान इनसे जिहाद करने पर कादर हों, इन पर तबलीग दीन और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काफिरों से जिहाद करना फर्ज किफाया है। और अगर किसी मुल्क के मुसलमान भी काफिरों से जिहाद ना करें तो फिर दुनिया के तमाम मुसलमान गुनाहगार होंगे। जब तक दुनिया में मुस्लिम अक़वाम तबलीग दीन और आलाए कलमतल हक के लिए कुफर और बातल कुव्वतों से जिहाद करती रही, वो दुनिया में इज्जत और सरबुलंदी के साथ जिंदा रहें। और जब उन्होंने जिहाद छोड़ दिया और ऐशो तरब की जिंदगी इख्तियार कर ली, मुसलमान मुशक्कत, जामशानी और सख्त कोशी की जगह सहूलत, आराम और तन आसानी की जिंदगी बसर करने लगे, तो जिल्लत और महकूमी इनका मुकद्दर हो गई। स्पेन में मुसलमानों का अरूज और जवाल, हिंदुस्तान में सलातीन मुगलिया की सरबुलंदी और पस्ती, और अरबों की इसराइलियों से फतह और शिकस्त का राज इसी एक नुक्ता में मुजम्मर है। आज पाकिस्तान की कौम भी तहजीब और कल्चर के नाम पर सिनेमा और वीसीआर वगैरह पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिल्मों के देखने के वो पूरे शौक में मुब्तला है।
और म्यूजिक के शोर में डूबी हुई है, और फिल्मों में जो फाशी और नीम उरियाना तहजीब दिखाई जाती है, इसको इल्मी जिंदगी में आर्ट और फैशन के नाम पर फरोग दे रही है। यही वजह है कि सकूत मशरकी पाकिस्तान के मौका पर 90,000 फौजियों ने हथियार डालकर मुसलमानों की अस्करी तारीख की बदतरीन मिसाल कायम की। जहाद के मुबाह होने की 2 शर्तें हैं। दुश्मने दीन इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दे और मुसलमानों और दुश्मनों के दरमियान जंग ना करने का मुआहदा ना हो, फिर जहाद मुबाह है। मुसलमानों को यह तवक्को और उम्मीद हो कि जंग में मुसलमानों को कुफार पर गलबा हासिल होगा। अगर मुसलमानों को यह तवक्को और उम्मीद ना हो तो फिर इनके लिए कुफार से जंग करना जायज नहीं। यह चीज नोट करने वाली है। मुसलमानों को यह तवक्को और उम्मीद हो कि जंग में मुसलमानों को कुफार पर गलबा हासिल होगा। अगर मुसलमानों को यह तवक्को और उम्मीद ना हो तो फिर इनके लिए कुफार से जंग करना जायज नहीं, क्योंकि जब मुसलमानों को जंग की कुव्वत और सामान्य हरब में बरतरी हासिल ना हो तो फिर इन कुफार से जंग करना खुदकशी के मुतरादिफ है। जहाद के वजूब की शराइत। जहाद के वाजिब होने की 7 शर्तें हैं। नंबर 1 मुसलमान होना यानी कि इस्लाम। नंबर 2 बलूग यानी कि बालिग होना। नंबर 3 आकिल अकल वाला होना। नंबर 4 आजाद होना। नंबर 5 मर्द होना। नंबर 6 माजूर ना होना। नंबर 7 जरूरियात का खर्च मौजूद होना। यानी कि जिहाद के जो है, जिहाद किन सूरत में किया जाएगा? इस सूरत में किया जाएगा कि आपके पास कुफार के लिए, जिनसे आप जिहाद करने के लिए जा रहे हैं, जंग करने के लिए जा रहे हैं, उनसे ज्यादा आपके पास वेपन और अफरादी कुव्वत हो, अददी कुव्वत हो, यानी कि आपके पास हथियार भी हो, आपके पास कुव्वत भी हो, और आपको इस पर यह यकीन हो कि आपने इतनी तदाबीर कर ली है कि आप जंग जीत सकते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा पर राजी रहते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जंग में हमें फतेह याब करता है या मुशरकों को, कुफार को फतेह देता है, वो अल्लाह की मर्जी है। आपने अपना, यानी कि जो मुसलमान हैं, जंग के लिए या जिहाद के लिए आपके पास इतना मालो ज़र हो, इतने अपना वक्त के लिहाज से, यानी कि जिस तरह का ज़माना चल रहा है उस लिहाज से आपके पास इतने वेपन्स हों, इतना असला हो कि आपको यकीन कामिल हो कि आप ही फतेह याब होंगे। अब जो ये हमारे कुछ दोस्त जो जिहाद को फरोख्त करते हैं, जिहाद को फरोख्त करते हैं, मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूं कि जिहाद को फरोख्त करते हैं। उनकी फरोख्त सिर्फ 2 चीजें हैं, जिहाद और शिरक। मुसलमानों में उनकी सिर्फ 2 ही आइटमें चलती हैं, एक है जिहाद और एक शिरक। जिहाद भी उनका खुद साख्ता है और शिरक भी उनका खुद साख्ता है। वजह क्या है कि वो अपने मसलक को और अपने किलों को मजबूत करने के चक्कर में है। उससे वो अपनी इज्जत, अपनी रियाकारी, वो जो कुछ करते हैं वो आप लोगों के सामने है। जिहाद करने का उनका नजरिया क्या है? यहीं पर डबल कैबन गाड़ियों में मुंह लपेटे होते हैं, हाथों में कलाशनें होती हैं, गन्स होती हैं, और मुसलमानों की डराते फिर रहे हैं, और उनका कोई काम नहीं। मैं उनको अक्सर कहता हूं कि भाई, वो मुझे कई बार मिलते रहते हैं, तो भाई आप जिहाद पर चलो, ये वो। मैं यार, आप देखें, जिहाद अफगानिस्तान में फर्ज है, पाकिस्तानियों पर फर्ज है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिहाद जो है वो नहीं कर रही, क्योंकि कुफार ने मुसलमानों को आके अफगानिस्तान में मारा, कत्ल किया। तो अब वहां पर जो काफिर हैं, आप इंडिया अफगानिस्तान में जाके क्यों जिहाद नहीं करते? ये उन दिनों की बात है जब ये जंग चल रही थी, ये उन दिनों की बात है। अब तो खैर हालात कुछ और हो गए हैं, तो आप क्यों नहीं वहां पर जिहाद करते? यहाँ ही पर गन्स उठाकर मुसलमानों को डराते धमकाते रहते हो और मुसलमानों की मसाजिद पर कब्जा करने के चक्कर में रहते हो, और खुद साख्ते शिरक के फतवे जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, कुरान और हदीस के मुखालिफ है, और लोगों को जड़कर मसाजिद पर कब्जे, और अपने ही वो तुम लोगों ने नया दीन बना के शुरू किया हुआ,
मैं ऐसे लोगों को यही कहता हूं कि ये नया दीन इन्होंने घड़ा हुआ है, और ये इनकी कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं, बहुत कम तादाद में है, और इन्हीं से ये तरक्की करते करते ख्वारिज की सफों में जा घुसते हैं। ख्वारिज मिन तालिबान, अलकायदा, और ये वो जो खार दीन से कतई खारिज हैं, जो सिर्फ मुसलमानों को ही कत्ल करते हैं। ये कोई जिहादी नहीं है, ये फसादी है। खुलकर ये बात कर रहा हूं। अगर कोई कहता है मुसलमानों में ही कि नहीं जी ये जिहादी है, मुजाहिद है, जो मुसलमानों पर बम धमाके करते हैं, 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया, बड़े बड़े बदबख्त उठे हैं, तो वो बड़े बड़े उन्होंने असेंबलियों में भी बकवासें की हैं, टीवी पर भी बकवासें की हैं। ये अपना लाल मस्जिद वाला मौलवी, ये तो बिल्कुल खुला है, और यहाँ पर ज़रबे अज़ब चल रहा है, उसके बावजूद आर्मी जो है वो ऐसे कुत्तों का मुंह बंद नहीं कर रही, ऐसे कुत्तों का मुंह बंद नहीं कर रही। इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे यही मैसेज जा रहा है जो क्रिश्चियन या सेमी सेंसुन जैसे लोग गैर मुसलमानों को जिहाद के मुतल्लिक जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बदबख्त फसादी, ये जिहादी नहीं है, ये फसादी उनके मैसेज को तकवीयत दे रहे हैं कि मुसलमान हर वक्त असला उठा के, चाहे वो मुसलमानों को मारे, चाहे वो बच्चों को मारे, चाहे बूढ़ों को मारे। तो इसके मुतल्लिक में हदीस से ये मैं बयान कर देता हूं कि जहाद के जो आदाब हैं वो क्या है। इसको हम देखेंगे तिब्यानुल कुरान जिल्द अव्वल, और इसकी सफ़ा 190 सॉरी सफ़ा 718 सूरह बकरा के, यानी कि ये तफसीर में है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हद से तजावज ना करो का मतलब यह है कि औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल ना करो, और ना उसको कत्ल करो जो हथियार डाल दे। अगर तुमने इनको कत्ल किया तो तुम हद से तजावज करने वाले होगे। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को लश्कर का अमीर बनाते तो इसको खुसूसियत के साथ खौफे खुदा की वसीयत करते और फरमाते, बिस्मिल्लाह पढ़कर जिहाद करो, और जो अल्लाह का कुफर करे इससे कताल करो, और खयानत ना करना, अहद शिकनी ना करना, और मुसल्ला ना करना, किसी के एजा ना काटना, और किसी बच्चे को कत्ल ना करना। यह है सही मुस्लिम में से हदीस मुबारका जिल्द 2 सफ़ा, ये आप देख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। इमाम मालिक, ये भी सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, इमाम मालिक यहया बिन सईद से रिवायत करते हैं कि हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद बिन अबी सुफियान की क़ियादत में शाम की तरफ एक लश्कर रवाना किया तो इनको ये वसीयत की, अनकरीब तुम राहबों से मिलोगे जिन्होंने अपने ज़ौम में खुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वक्फ किया हुआ है, इनको छोड़ देना। और अनकरीब तुम मजूसियों से मिलोगे जो सर के दरमियान से बाल काटते हैं, उनको कत्ल कर देना। और मैं तुमको 10 चीज़ों की वसीयत करता हूँ, किसी औरत को कत्ल ना करना, ना किसी बच्चे को, ना किसी बूढ़े को, और ना किसी फलदार दरख्त को काटना, और ना किसी बकरी या ऊंट को की कौंचे काटना, और ना किसी खजूर के दरख्त को जलाना, ना किसी आबादी को वीरान करना, और ना किसी को गरक करना, और ना माले गनीमत में ख्यानत करना, और ना बुज़दिली करना। यह है दीन इस्लाम का जिहाद। और अगर दीन इस्लाम ने यही करना होता कि जब वो गैर मुसलमानों को, चाहे वो काफर है, मुशरिक है, ईसाई है, हिंदू है, कोई सी भी मज़हब व मिल्लत से है, उनको सिर्फ असला पकड़कर कत्ल ही करना है, तो सबसे पहले जो शर्त आयद की गई है कुरान पाक में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले उनको दावत दो। दावत किसकी दो? दावत दीन, दीन इस्लाम की दावत दो। अगर वो दावत कबूल कर ले, अगर वो दावत कबूल कर ले तो वो आपके बराबर है। ना उनसे कोई जजिया लिया जाएगा, ना उनसे कोई टैक्स लिया जाएगा, ना उनसे कोई ऐसी चीज ली जाएगी। वो हमारे नौ मुसलमान भाई हैं, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। और अगर वो जंग पर आमादा हैं, जंग पर ही आमादा हैं, तो फिर लड़ो, फिर लड़ो। फिर भी आदाब मैंने बयान कर दिए हैं कि किस अंदाज में लड़ना है। ये नहीं कि कारपेट बमबारी हो, जैसे ये ईसाई चूड़े अमेरिका या दूसरी कंट्रीज मुसलमानों पर कर रहे हैं, इराक में, अफगानिस्तान में, या गैर मुसलमानों पर
वियतनाम और ये क्या नागासाकी में हुआ, हिरोशिमा में हुआ, और जहां जहां पर भी इनको मौका मिलता है और यहूदी फलस्तीन पर कारपेट बमबारी कर रहे हैं। ये तरीकाकार नहीं है। जिहाद का तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट है। जिहाद का मसला यानी कि ये मतलब नहीं है कि सिर्फ खून बहाना है या सिर्फ कत्लो गारत करना है या इंसानों को टुकड़े करना है। ये जिहाद नहीं है, ये जिहाद कतई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन को, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए कुफार से जब भी जंग होगी, कुफार से जब भी जंग होगी तो जंग के आदाब को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। जंग के आदाब को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अर्ज करता हूं, बड़े मोहब्बत से, बड़े अकीदत से अर्ज करता हूं, आप चाहे किसी भी कोई भी गवर्नमेंट है आपकी, चाहे आप इस वक्त, क्योंकि मेरा बयान ये चलता रहेगा, नेट पर रहेगा, आप चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आप चाहे पीपी की हुकूमत है, चाहे ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, चाहे पाकिस्तान की हकीकी हुकूमत यानी कि आर्मी की हुकूमत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये फसादियों को नथ डालें जो जिहाद के नाम पर अजीबो गरीब किस्म की मंतके पेश करते हुए जिहाद को बिगाड़कर गैर मुस्लिम जो स्कॉलर हैं, जो जिहाद को फसाद साबित करने पर तुले होते हैं, ये ऐसी ऐसी बकवासें हमारे मुसलमान नाम नेहाद मुसलमान कर जाते हैं कि वो उनके लिए, वो उनकी सपोर्ट में चली जाती हैं। तो अब आते हैं बाइबल की तरफ। बाइबल में जंग का क्या है? बाइबल में जंग के बहुत सारे मामलात हैं, वो मैं अपने बयानात में जब मैंने जहां जहां भी किए हैं तो मैंने बाइबल के पर्दे फाड़े हैं कि बाइबल का जो खुदा है वो खूनखार है। वो तो सिर्फ एक ही चाहता है कि कत्ल करो, जला दो, ना कोई बच्ची देखो, ना कोई बच्चा देखो, ना कोई औरत देखो, ना कोई मर्द देखो। बहुत हवाले दे चुका हूं, इसलिए सिर्फ आज क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सिर्फ एक ही हवाला दूंगा। वो जो ईसाइयों की, मसीहों की जंग है वो क्या है? वो है मत्ती बाब 10 और आयत 34। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि बेटे को बाप से और बेटी को माँ से और बहू को सास से जुदा कर दूं। आदमी के दुश्मन उसके अपने घर ही के लोग होंगे। जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपने बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपनी जान खो देता है वो उसको बचाएगा। ये है मसीहत का, ईसाइयत का जिहाद। कि यस्सू ने साफ फरमा दिया कि मैं सुलह करवाने के लिए नहीं आया, तलवार चलवाने के लिए आया हूं। अब जो यस्सू को कबूल ना करे, जो यस्सू को खुदा कबूल ना करे, जो यस्सू को हरामी कबूल ना करे, जो यस्सू को लानती कबूल ना करे, अब क्या है कि ईसाई उस पर कारपेट बमबारी करेंगे। ये आप हिस्ट्री उठा के देख लें, क्रॉसड वायर्स या सलीबी जंगे। सिर्फ मुसलमानों की किताबें ना पढ़े, गैर मुसलमानों जिन्होंने इस पर लिखा है, पादरियों की किताबें नहीं, जो झूठ लिखने पर और झूठ बोलने पर ही हर वक्त तैयार रहते हैं, जो मौरखीन ने सलीबी जंगें लिखी हैं, और आज भी जो सलीबी जंगों के नाम पर फलस्तीन में हो रहा है, इराक में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है और दूसरे ममालिक में, जो ईसाई फंडिंग करके ख्वारिज को खरीद कर मुसलमानों को ऐसी तैसी लगा रहे हैं, वो आप खुद देख रहे हैं। तो ये है यस्सू के फरमान पर अमल करना। दीन इस्लाम में ऐसा कतई मामला नहीं है। कभी भी दीन इस्लाम का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर उंगली उठाई जा सके। मेरे सामने आज तक कोई ऐसा पहलू आया नहीं। मेरे पीछे आप किताबों की कतारें देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहता हूं, और सिर्फ पढ़ता ही नहीं रहता हूं, लोगों का मुशाहिदा भी करता रहता हूं। हर मसलक के, हर फिरके के लोगों से मिलता हूं, लोगों को जानता भी हूं, और मैं खुलकर बोलने वाला बंदा हूं। जैसे आज मैंने ये फसादीन को यानी कि ख्वारिज को खींच दिया, पहले भी बयानों में खींचता रहता हूं। पहले मैं लिखता था, उस वक्त भी खींचता रहता था। तो बात यह है कि सिर्फ ये नहीं कि आप गैर मुस्लिम हैं, अब आपका ये फर्ज बन गया कि आपने सिर्फ इस्लाम पर
जो है धब्बे ही लगाने हैं, या मैं मुसलमान हूं तो मेरा फर्ज बन गया कि ईसाइयत पर मैं उंगली उठाता रहूं, या मैं हिंदू मत पर, या ये ठीक है उन मज़ाहब में अकीदा उनका खतरनाक है, गंदा है, मगर जो चीज़ उनमें अखलाकी तौर पर अच्छी होती है वो मैं कह देता हूं, और मेरे बयानात आपने देखे होंगे, तो मैं कहता हूं कि इनमें ये चीज़ अच्छी है, चाहे वो किसी भी मज़हब मिल्लत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम समझ कर कबूल करने की तौफीक खास अता फरमाए, आमीन।